ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਇਹ ਫਲਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟਾਓ, ਪੈਸੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਬ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਸਮੈਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੋਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਦਾਣੇਦਾਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛਨਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਹੋਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਖਰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 8 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਬੈਗ, ਅਗਰ ਟੋਟਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਟਨਿਓਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਬੈਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ 30 ਬੈਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਮੂੰਜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 20 ਬੈਗ। ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਫੋਲੀਅਰ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਥਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਟੋਟਲੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਮੀ ਟੀ ਤੇ ਵਰਮੀ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਫੋਲੀਅਰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਬਾਤ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ 20-50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਲ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗਰੇ ਜਿਆਲੇ ਦੇਖੋ ਸਰਗੋਧਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਚੂਆ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਵੀ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ। ਤੁਸੀਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं MR ऑर्गेनिक्स की जानब से मोहम्मद रिजवान खान, तहसील शकरगढ़, ज़िला नारोवाल से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्योंकि आज फिर हमारे पास एक हमारे दोस्त, हमारे बुज़ुर्ग सरगोदा से तशरीफ़ लाए, मेरे फार्म का विज़िट किया और रेड विगलर्स लेने के लिए आए। कितना रेड विगलर्स लिया, इनको हमारा सेटअप कैसा लगा और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक की तरफ कैसे इनका दिल चाहा कि हम ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, इस बारे में टोटली इन्फॉर्मेशन या बात करेंगे आप दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, अपना तारुफ करवा दें। मैं जनाब, मेरा नाम सरफराज अहमद है, मैं सरगोदे से हूँ और तकरीबन मेरी ज़िंदगी तो पाकिस्तान से बाहर ही गुजरी है। हाँ जी। और ऑर्गेनिक की तरफ आप कैसे आए? ऑर्गेनिक हमने वहाँ स्पेन में देखा जी, ऑर्गेनिक फसलें लगाते हुए लोगों को और ये वर्मी कंपोस्ट बनाते हुए हमने देखा। हमने उधर से ये सारा कंसेप्ट हासिल किया और फिर मैंने रिजवान साहब की वहाँ पे वीडियोस देखी। स्पेन में रहते हुए? जी स्पेन में रहते हुए। और मैंने यानी कि शुरू से ही मेरा प्रोग्राम था कि रिजवान साहब के पास जाऊंगा, देखूंगा, इनका सेटअप भी देखूंगा और इनसे फिर विगलर्स वगैरह भी खरीदेंगे इंशाल्लाह। और इसलिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ इनसे विगलर्स वगैरह खरीदने के लिए। हाँ जी। मेरी तो कोशिश होती है कि वीडियो में मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूं, लेकिन जो दोस्त मेरे पास आते हैं ना यहाँ वीडियो मसलन विजिट करने के लिए, वो अक्सर दोस्त कहते हैं कि वीडियो में कम है,
यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आपका क्या है इस बारे में? नहीं जी, मुझे तो वीडियो आपकी बड़ी अच्छी लगी है कि कम नहीं है, यहाँ पे तो बहुत कुछ है। आप यहाँ तो मैंने देखा है जी, इनके पास बहुत माशाल्लाह बेड भी बहुत लगे हुए हैं, इनका काम भी माशाल्लाह ठीक ठाक है जी। और अच्छी किस्म की इनके पास ब्रीड है जी। माशाल्लाह, और हर मैं, बेड भरा है। हाँ जी, मैं अपने दोस्तों से गुजारिश भी करूँगा कि अगर जिस भाई को ये चाहिए वो इधर आके विजिट करें और इनसे हासिल करें बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह। सर बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें आना इसलिए है कि हमने अपनी नस्लों की बर्बादी कर ली पिछले 40-50 साल में। बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ जब मैंने केमिकल फार्मिंग बड़े जोबन से की, और जब अल्लाह ने हदायत दे दी, तो हम पिछले 4 साल से वर्मी कंपोस्ट पे काम कर रहे हैं, और पिछले से 6 साल से हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की। उसके मुख्तलिफ मेथड थे, तो अब मैं 3 मेथड मिक्स करके ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। वो मैं माशाल्लाह। अगर कई एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन फर्टिलाइजर जो वर्मी कंपोस्ट है ना, ये लाजवाब है, इसका कोई तोड़ नहीं कोई है। तो हाँ जी। सही बात है, बेशक क्योंकि बेशक। क्योंकि ये रेड विगलर जो अर्थवर्म्स की नस्ल है ना, सीनिया फटीडा, ये ऐसे काम करती है जैसे शहद की मक्खी पत्तियों का रस चूस के शहद तैयार कर देती है, रेशम वाला कीड़ा पत्ते खा के रेशम तैयार कर देता है। बेशक ये भी रेड विगलर्स जब 100 kg गोबर खाता है ना, तो 40 kg हमें ब्लैक गोल्ड फर्टिलाइजर तैयार करके देता है। कोई बेशक। ब्लैक गोल्ड कह देता है, कोई ब्लैक डायमंड कह देता है। जी जी जी। बाकी हर बंदे का अपना है। इसको ना तो ब्लैक गोल्ड से कंपेयर किया जा सकता है, ना ब्लैक डायमंड से। ये कुदरत की तरफ से ऐसा अनमोल तोहफा है, क्योंकि गोबर भी कुदरती है और रेड विगलर्स भी कुदरती है। ये दोनों जब इसको प्रोसेस करते हैं ना गोबर को, तो फिर कमाल की चीज़ ये तैयार होती है। आप हर फार्मर, हर दोस्त सरफराज भाई की तरह अपने डेयरी के वेस्टेज से या अपने फार्म पे अपनी ज़रूरत की फर्टिलाइज़र खुद तैयार खुद कर सकते तैयार हैं। कर सकते कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर लें, लेकिन आप सारे दोस्त कर ज़रूर लें। हैं। क्यों बेशक सरफराज भाई? बेशक बेशक जी, मेरा यही मोटो है कि मैंने भी छोटे पैमाने से स्टार्ट किया है, और इंशाल्लाह मैं अपने 2 मुरब्बे ज़मीन है हमारे पास, और हमने जितनी भी काश्त आगे करनी है वो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे जी, वर्मी कंपोज ही इस्तेमाल करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हमारा कम चांस है कि हम जो है ना वो केमिकल्स वगैरह जो है ना। जरूरत नहीं हाँ पड़नी जी। इंशाल्लाह। जब तक तो आपकी वो 1 टन या 1.5 टन या 2 टन पर एकड़ की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, उतनी देर तक तो शायद आपको केमिकल का सहारा लेना पड़े। बेशक बेशक। लेकिन जब आपकी सेटअप बड़ा हो जाना है ना, इस वक्त सरफराज भाई 20-20 फीट के 2 बेड से शुरू कर रहे हैं, यानी कि 40 फीट। हाँ जी। हाँ जी, 40 फीट बेड लगा रहे हैं। तो उसके लिए ब्रीड लेने आए हुए थे हमसे, तो वो जी हमने जी। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर दी है, थैलों में डाल दी है। तो सर बेसिकली जब इनका सेटअप बड़ा होगा तो सारी की सारी फर्टिलाइजर ये अपनी ज़रूरत की खुद पूरी करेंगे। फिर हम इनको वर्मी वाश तैयार करना भी सिखाएंगे, वर्मी टी तैयार करना भी सिखाएंगे। जब ये दोनों चीज़ें वर्मी कंपोस्ट के साथ मिल जाएंगी ना, तो ना तो फिर पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, ना फंजीसाइड की ज़रूरत है, और ना ही कोई और केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत रहेगी। बेशक। तो सरफराज भाई एक दफ़ा फिर दोस्तों को आपने बताना है कि जो आपको कैसा लगा है मेरे फार्म का विजिट करके, वो काइंडली ज़रूर बताएं और ज़रूर दोस्तों जनाब, से मैं जाके। रिजवान साहब से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। शुक्रिया अल्लाह सर। ताला ने इन्हें बड़ा अच्छी यानी कि अखलाक दिया है, और मैं चाहता हूँ कि मैं दोस्तों से भी कहूँ कि वो इधर आएँ और इनसे रब्ता करें। इनका बड़ा अच्छा फार्मिंग भी बड़ी अच्छी है, और इनका बिहेव भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। हाँ जी, और इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी मुलाकात होगी। दोस्त तशरीफ लाते हैं वो इंशाल्लाह उनके लिए रहाइश भी और खाने का इंतज़ाम भी फीस भी लिल्लाह है। बेशक ठीक है, अल्लाह बेशक। की रज़ा के लिए, क्योंकि ये मिशन ही ऐसा है कि ये सदका जारिया वाला मिशन होना है दोस्तों। जी जी, इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। एक वक्त इंशाल्लाह जब हम नहीं इस दुनिया में होंगे ना, तो तो एक लोग वक्त हमें, लोग ये वीडियो देख के कहा जरूर करेंगे कि किसी ने एफर्ट की थी। और बेशक मैं सिर्फ बेशक। मैं ही अकेला नहीं कर रहा, और भी मेरे जैसे दोस्त हैं। अल्लाह ताला उनको भी उम्र खिजरत आ फरमाए और सबकी मुश्किलात
परेशानियां दूर फरमाए। इसी के साथ मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका मेरा हामी नासर हो। अल्लाह इस्लाम हाफिज। जिंदाबाद, अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।